أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So now we have, after the President inviting and welcoming everybody, I would like to make a special welcome for our guest of honor and the chief guest. So I request Ariba to please come forward and present a bouquet to the guest of honor, Dr. Shamin Daho. As a secretary of ANI, I thank each and everyone in this room. You put in the time to grace this occasion with your presence today, despite the rain and the solar eclipse earlier. You made it. So after the pause due to the pandemic, ANI is hosting the first international Mushaira today, 2023. So big clap to that. In July of this year, ANI hosted the 22nd annual convention of the FAAA, that's the Federation of Aligarh Alumni Associations. It was a productive and nostalgic 3 whole days of events, including inspiring speeches and talks, Numaish-style Shahi Tukre, and a bus tour of Manhattan on a rainy day with non-stop ghazals and much, much more. During the convention, Mr. Kausar Usmani was elected as the president of the federation for this year. I, Asya Kabir, was elected as the secretary of FA, and Mr. Ahmad was appointed to the board of trustees. So this year we had increased representation from New York to the federation, to FAA. ANI continues to engage in fundraising and various philanthropic pursuits in India, such as Syed National Schools and also on the US soil. I was elected as the secretary of ANI in January 2023. A goal very close to my heart is to enhance communication and networking in the Ali community of the New York and tri-state areas. So we all know that such a communication already exists, right? No doubt. But we need to just make it easier and more effortless. So we continue to strengthen. In that context, we continue to strengthen our social media platforms. In 2023, we proudly created the ANI YouTube channel, where you can now find videos close to our heart, such as the taranas that we have sung on the FA convention and in previous Syed Day occasions. On this YouTube channel, you can find inspiring speeches by our honored chief guests. ANI members are welcome to join the WhatsApp group, and you can follow our website aligny.org, aligny.org, for membership information. You can follow our Facebook page with ANI event updates. So we have all gathered here, we are all meeting here today, right, to celebrate the Syed Day event, annual event, as well as the Mushaira. But I would also like to say that we plan to host many more in-person events, such as holiday celebrations and outdoor picnics, just again, to increase our communication and networking. The magazine placed on your tables is our annual magazine, published this year, the New York Aligarh. This year we have attempted to gather articles from Aligarhs spread all over the world, around the globe, and Aligarhs from various facets of life and like a multitude of various professions. Digital copy of this magazine will be uploaded on our website. So on that note, please keep smiling and enjoy the rest of the evening for this event. And I just said that as I was compiling the magazine today, I read your message that you wrote for us, and I was deeply inspired by your personal, professional, and philanthropic journeys and beliefs. Dr. Shamin Daho is a physician and philanthropist. She's a member of the Board of Trustees at Boston University and the Dean's Advisory Board at the Medical School. She serves on the Board of Trustees at Tufts Medicine Lowell General Hospital, Mass General Brigham's Cancer Advisory Board, and the Board of Directors of Lowell's Boys and Girls Club. In the past,
Dr. Dahod has served on the board of Dean's Advisors at Harvard Business School, the board of trustees at the Pike School, and the board of directors of Women Working Wonders. Dr. Dahod, please come and grace us. Thank you. Please give a big round of applause to Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. I deeply appreciate and truly grateful for this honor that you have bestowed on me. Thank you, Brother Kausar Usmani, for this recognition. Thank you, Sister Shaheen, for including me as the 100 Muslim women rising above the ceiling. All of the credit for that, what I have little accomplished, goes to my religious leader for spiritual inspiration, leadership, and guidance. His Holiness Dr. Sayyidina Mufaddal Saifuddin and his father, late Dr. Holiness Sayyidina Muhammad Burhanuddin. One is a current chancellor of Aligarh University. The other is a past chancellor of this great institution. Their teachings emphasize a balance of both religious and worldly. They encourage us to seek religious and worldly education for both boys and girls, participate in both spheres with same zeal, and give back to society at large, where we live today and the land of our origin. They emphasize the contribution one could make towards the upliftment of society through direct assistance and by helping with education, housing, business. It's so appropriate that these teachings exemplify the ethos of the person whose life we are gathered here to celebrate today, Sir Syed Ahmad Khan. He was a shining light for his time in promoting education and cultivating leaders to uplift the whole society and contribute in nation building. The inspiration could derive from his life is so much needed today. Education has always been very important in our family. My father emphasized that education is more important than wealth. He used to say that wealth is here today and could be gone tomorrow, but education stays with you for all your life. With education, you could always help others in many ways. Education is about everything. Educating the girls is very important and educating the boys as well. Thank you very much for bringing that up. I really appreciate that. Thank you. We definitely need more universities like Aligarh Muslim University. One of the things about Aligarh University is that we are bound together. No matter who we are and where we are, no matter how much we do not like one another, whatever it is, but we are one. I remember that when my husband was a little sick, and at 11:30 in the night, I called one of the persons who is a doctor, and he actually had doctors calling me. That is what Aligarh is about. You know, like you can call anyone anytime, and then they will be there to help you. So we really appreciate that. Now I invite Kausar Usmani, who is the president of the association, to introduce the chief guest. कि भाई अलीगढ़ वालों का ये है कि किसी की ज़रूरत पड़े, और इन्होंने जिस डॉक्टर का जिक्र किया वो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर इंतज़ाम खान, जो जब मेरी तबीयत ऐसा लगा कि ख़राब हुई और डॉक्टरों की भी लगा, तो उन्होंने बहुत मदद की और बहुत से ऐसे लोग डॉक्टर्स को कॉल किया कि जो अब हमसे कॉल कर रहे थे कि हमारे पास आ रही है। डॉक्टर इंतज़ाम खान, आपके प्लीज़ कॉल करें।
तो इसी तरह से जो अनुभव सिन्हा के चीफ गेस्ट हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो अलीगढ़ के रिश्ते से हमारे जूनियर। आई होप यू डोंट माइंड मी। काफ़ी लोग तो वो भी जो है वो अलीगढ़ के नाम पे आ गए। उन्होंने कहा कोई भी डिमांड नहीं रखी, नॉर्मली जो ऐसे जिन्होंने कुछ अचीव किया है ऑलवेज पुट समथिंग कि मैं ये देना चाहिए। he had simply said nothing and he came here and he is very friendly. So as most of you know that he is a renowned Bollywood director, producer and screenwriter. He has made notable movies like Ravan, Das, Tumbin and many more movies. And his movies are not only just entertainment, he has always a message in that, and that's what the specialty he has compared to other Bollywood directors and actors here. He is an alumnus of Aligarh Muslim University, where he graduated in mechanical engineering. I don't know what he is doing with the film industry with his degree, but he is definitely a mechanical engineer with the degree. I will just read a quote which Mr. Sinha himself has written, and if I don't go to Aligarh, I would not know much about Hasrat Mohani, Iqbal, Faiz and Majaz. I would be such a poor man without them. Thanks God, I went to Aligarh Muslim University. So this is his character and how he loves university. So please give him a big applause of Mr. Aligarh Alumni. मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब कैसर भाई ने हिंदुस्तानी में बात की। उर्दू तो मुझे आती नहीं, लेकिन मुझे अलीगढ़ के बारे में और अलीगढ़ वालों से बात कर सकता हूँ, अंग्रेजी में बात करता हूँ। हाँ, मैं न्यूयॉर्क में पढ़ा हूँ। मैं आ जाता हूँ। तो सबसे पहले शुक्रिया सर सैयद अहमद खान साहब का कि उन्होंने, पता नहीं कब, मुझे साल याद नहीं है, याद था हो गया, ये सोचा कि हर सवाल का जवाब एजुकेशन है। और आज के दौर में जब स्पेशली हिंदुस्तान की सोसाइटी अपनी डाइवर्सिटी से स्ट्रगल कर रही है, उस दौर में भी ये समझ में आता है कि एक्चुअली सारी स्ट्रगल का जवाब कहीं ना कहीं एजुकेशन में रखा है। और ऐसे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बनेंगे उतना आगे सोसाइटी जाएगी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी ये शुक्रिया उन तक पहुँचे। जब मुझे परसों भाई का फ़ोन आया, बिहार का फ़ोन आया कि आओ, तो मैं आमतौर पे मैं गैदरिंग से बहुत शाय हूँ। जब मुझे कोई भी इनवाइट आता है तो मेरे सबसे पहले दिमाग में ही चलता है कि मुझे यहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक बहाना ढूंढना शुरू करता हूँ। मैं पार्टीज वगैरह में जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, ज़्यादा लोगों से मिलना मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन जब भी मुझे अलीगढ़ के मुताबिक कोई इनवाइट आता है तो दिमाग पहले ये चलता है कि अच्छा ये है, इस चीज़ को कैसे अवॉइड करके यहाँ चला जाऊँ। और मैं सोच रहा था, आज एक्चुअली दिन में मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा टहलूंगा मैनहट्टन में, वो हुआ नहीं। हाँ, इतनी बारिश हुई, मैं पीछे भी फोटोग्राफी शुरू की है तो मैं जाके फोटो खींचूंगा कुछ, पर इतनी बारिश थी कि मैं निकल नहीं सका। हाँ, लेकिन कल एक और, हाँ, तो मैं सोच रहा था आज अकेला लेटा हुआ, मैंने कहा यार इतना ऐसा अपने, ठीक है एक वो होता है कि आप यहाँ से पढ़े हैं, वहाँ से आपके कुछ जूनियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इतनी सारी एसोसिएशंस पूरी दुनिया में हर साल इस दिन को, इस बात को सेलिब्रेट करती हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई और उसको वर्दी ऑफ सेलिब्रेशन मानते हैं। और मैं अभी बात कर रहा था बाहर के, अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए कि हर साल तुम ये ऑर्गेनाइज करो तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं पहली बार ही नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग अपने, और मतलब अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे के बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, हाँ, हम लोग तो उस मामले में प्रिविलेज हैं कि भाई खाना खा के टेबल उड़ गए छोड़ के, तो बस वो ले, आप सब जानते हैं। तो उसके बावजूद
कपड़े भी धोने हैं, इस्त्री भी करने हैं। आज मैं होटल वाले से इतना नाराज़ हो गया, उसमें मेरा जैकेट मुझे आयरन करना था, उनके पास कोई था ही नहीं, तो मुझे खुद करना था। तो ये मैंने कुछ 70 साल के बाद मेरे अपने कुछ कपड़ा इस्त्री किया होगा। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या है, और मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि अलीगढ़ जो है ना, AMU खास तौर पे, ये उस गजल की तरह है जो जितनी बार पढ़ो थोड़ी सी और समझ में आती है। और तो हाँ, वो एक एक शेर उसका खुल खुल के आता है, और ऐसा लगता है कि ये कहाँ चला गया था। जब मैं गया था तो मेरा जाना अलीगढ़ एक्चुअली एक्सीडेंट था। तो उस जमाने में जब हम लोग इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया करते थे तो IIT सबसे ऊपर था, फिर रुड़की था, फिर और भी थे। तो मेरा सिलेक्शन सिर्फ अलीगढ़ में हुआ था, तो मैं मजबूरी के तहत गया था। और वो अब जाके वो ये साबित भी हो गया कि मेरा कहीं सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं इंजीनियर बनने के लिए शायद बना ही नहीं था। और वो मुझे एक लम्हा है जो मुझे भूलता नहीं है कि जब वो एडमिशन के लिए मैं गया था तो फादर साथ में गए थे, मैं बनारस का रहने वाला था। तो उस जमाने में दंगे हुआ करते थे हिंदू मुसलमान के, जैसे सालाना जैसे ईद होती थी, होली होती थी, वैसे दंगे होते थे। अब वो थोड़े कम हो गए, वो दंगे थोड़े ऐसे तवील हो गए, वो अंदर हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन जो एक सेलिब्रेशन होता था हमारी दुश्मनी का, वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो जब पिताजी मुझे छोड़ने गए तो वो बेचारे ऐसे छोड़ के गए थे कि जैसे पाकिस्तान में छोड़ के जा रहे थे। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि ऐसे शेरवानी पहनाएंगे। आज मैंने जानबूझ के शेरवानी नहीं पहनी। मैं जब निकला वहाँ से, मैं नॉर्मली अलीगढ़ के किसी भी इवेंट पे जाता हूँ तो शेरवानी पहनता हूँ। तो मेरे डिज़ाइनर दोस्त लोग हैं, तो वो कुछ ऐसे टेढ़े बटन वाली शेरवानी बना देते हैं, कभी कुछ उसमें कॉलर लगा देते, कभी कुछ कर देते। इस बार मैंने कहा अब ये वो दौर में एटलीस्ट हिंदुस्तान का समाज है जहाँ पे सिंबलिज्म से बचने की ज़रूरत है। जो आत्मा है, जैसे मैं एक बार यूनियन हॉल में मुझे फेलिसिटेट किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुलाया था। तो वहाँ जब मैं बोलने के लिए माइक पे खड़ा हुआ था, मैंने टोपी नहीं पहनी हुई थी, तो जाहिर है वोटिंग शुरू हो गई। तो जो यूनियन का जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे अपनी टोपी दी, मैंने पहनी। फिर मैंने उनसे झगड़ा किया, मैंने कहा भाई ये टोपी और शेरवानी जो है, पहली बात तो ये मुसलमानों की है नहीं, ये हिंदुस्तान की है। दूसरी बात ये कि इससे क्या तय होगा, इससे मेरा प्यार तय होगा क्या अलीगढ़ के लिए, या टोपी के बिना मैं अलीगढ़ में बोलने का हकदार नहीं। तो उस सिंबलिज्म से बचने के लिए मैंने इस बात तय किया कि लाल रंग की जैकेट पहन के जाऊंगा। फिल्मी लोगों को ये सब अलाउड होता है। इतना अच्छा लगता है जब जाता हूँ ऐसी जगहों पे, ऐसी इवेंट्स पे, इतने सारे लोग मिलते हैं जो मुझे मालूम है कि इन सब ने किसी न किसी वक्त में शमशाद मार्केट में बैठ के चाय पी है। इन सब ने जाके नुमाइशों में हलवा पराठा खाया है, और कभी कभी बिना पैसे दिए भागे। वो पता नहीं, आप लोग में से कुछ मेरे सीनियर हैं, ज़्यादातर सीनियर लोग दिख रहे हैं मुझे। मैं एक्चुअली मैं मानता हूँ कि मैं अभी 35 का हूँ। मैं बताता हूँ अपने से छोटों को कि हम लोग लड़कियों को सिर्फ देखने जाते थे, उसके ऊपर हमारे दिल में कोई डिज़ायर नहीं थी। तो लोगों को समझ में, मेरे बेटे को बोलता हूँ या और यंगस्टर्स को बोलता हूँ, उनको समझ में नहीं आती बात कि देखने का क्या मतलब है। हमने कहा हमारे यहाँ तो देखना ही इतना मुश्किल था। मतलब मैं एक मेरी सीनियर थी, वो पता नहीं क्यों मेरे साथ चाय पीने चली गई शहर में, रेलवे रोड पे। तो लौट के आ गए, चाय वही पी के आए थे। तो अगले दिन मेरे ऊपर बंदूक लग गई थी, मुझे बुला के धमकाया गया था कि तुम SN हॉल की सड़क पे जाओगे नहीं। और मैं 1.5 साल नहीं गया डर के मारे। तो वहां से निकले हुए लोग और हम सब, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जाने कहाँ कहाँ पहुंचे। किसी भी मुल्क में जाओ, न्यूयॉर्क में इतने सारे लोग हैं, अलीगढ़ के, ऐसा बाहर से देख के नहीं समझ में आता है। DC गया था, अपने साथ के बैचमेट्स हैं, पता है कि वो दुनिया के हर मुल्क में हैं, एंड माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। पर हम सब लोग एक साथ मिलके हमारे इंस्टीट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं। और आज भी दोस्त है, मतलब भले निहाल जैसा दोस्त है लेकिन दोस्त है, भले नजम जैसा दोस्त है लेकिन दोस्त है। नजम को आज मैं पता नहीं कुछ 30 साल बाद मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और हम सबको जो कर सके अलीगढ़ के लिए, AMU के लिए करते रहना चाहिए। कभी आप लोगों को लगे कि मैं किसी काम आ सकता हूँ, अलावा
के ऑर्गेनाइज करने के, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के अलावा, तो मैं उसमें नहीं कर पाऊंगा, उससे नहीं होगा। मतलब मेरा बड़ा मन है, मैं ना मुल्क बनाने के बाद से मैं थोड़ा डर गया हूँ। सर ने कहा अलीगढ़ में फिल्म बनाने को, कि अब मैं ना इस बात को अब मैं और अंडरलाइन नहीं करना चाहता कि हिंदू मुसलमान एक नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल हमें मोहब्बत पे काम करने की ज़रूरत है और हम करें मोहब्बत। अब उसके बारे में बात करके मुझे लगता है हम उन जो भी डिफरेंसेस थोड़े से बढ़ गए हैं आजकल, उसको और बढ़ाएंगे। तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में काम करना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे के साथ आना चाहिए। और इंशाअल्लाह ये लंबा दौर नहीं है, ये दौर भी जाएगा। हम जैसे मैं कल बात हो रही थी, हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैं कह रहा था कि हिंदू और मुसलमानों ने बहुत सारे इनकन्वीनियंट कॉन्वर्सेशन किए नहीं आपस में। मतलब जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो जाहिर है हमने एक दूसरे का कत्ल किया, हमने एक दूसरे के घर लूटे, और उसके बाद फिर एक वो लाइन वाइन खिंच गई, और फिर वो एक अजीब सा हमारा अंडरलाइन टेंशन दोनों कौमों के बीच में रहा है। हिंदू बात करते रहे कि वो मुसलमान क्या खाना मत खाना, क्योंकि वो थूक के देते हैं खाने में। अच्छा, सुन्नी शिया के बारे में ऐसा बोलते थे और शिया सुन्नी के बारे में ऐसा बोलते थे, और हमने आपस में कभी ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने जाके पूछ लिया हो कि भाई आप क्या थूक के खिलाते हैं क्या? तो वो बोल देते कि नहीं भाई, क्यों थूक के खिलाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं बोलता हूँ दोस्तों से बम्बई में, कि अगर अजान की वॉल्यूम से तकलीफ होती है तो किसी ने कोशिश की कि जाके मस्जिद में बात करें कि बॉस थोड़ा सा कम कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस बात पे दंगा हो जाएगा। मुझे लगता है वहां जाके आप जो भी ऑर्गेनाइजर होगा, कोई मौलाना साहब नहीं होंगे वो, लेकिन जो भी होगा उससे अगर बोलेंगे कि थोड़ा सा कम कर दीजिए, फजर वाली थोड़ी कम कर दीजिए ताकि सोने में तकलीफ, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दंगा हो जाएगा या कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बातचीत होगी, वो कहेंगे नहीं हम नहीं कम करेंगे, जो भी होगा, पर तलवारें नहीं निकलेंगी। तलवार तो हम दूसरी बातों में वैसे भी निकाल ही लेते हैं माशाल्लाह। तो हमने इनकन्वीनियंट कॉन्वर्सेशंस किए नहीं, वो हमारे अंदर दबी नहीं बातें, हम एक दूसरे के बारे में अंदर ही अंदर बातें करते रहे, और वो एक दीवार सी थी जो इनविजिबल थी, और अचानक उस दीवार एक्सप्लॉइट हो गई, उस दीवार का इस्तेमाल हो गया। तो अब शायद वो दौर है कि जब हम सबको आपस में बैठ के वो इनकन्वीनियंट बातें कर लेनी चाहिए। मतलब जब मैं अलीगढ़ गया था, मैं एक्चुअली तो नादान था या बहुत सयाना था। मतलब एक दिन हमारे मौलाना साहब थे जो तबलीग वगैरह में बुलाया करते थे, मुझे ज़्यादातर लोग समझते थे मेरा नाम अनवर है। तो हाँ, वो उधार के रजिस्टर में भी मेरा नाम मुझे पता नहीं था, उर्दू में अनवर लिखा हुआ है, तो मैं कभी भी पैसा बिना दिए भाग सकता था, लेकिन मैं भागा नहीं। तो हमारे भारत मौलाना साहब थे, वो अक्सर तबलीग में आते थे, लेकिन मैंने फिर जोर से बताया कि मेरा नाम अनुभव सिन्हा है, तो तबलीग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बरी हूँ। तो उनसे दोस्तियों के बाद में फिर तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने कहा ये अल्लाह मियाँ के आगे ताला क्यों लगा दिया आपको, क्योंकि मुझे वो ताला सुनाई देता था। तो उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे बताया कि वो लफ्ज़ है क्या। इस किस्म की बातचीत हुई नहीं है, और मेरे को लगता है कि इस दौर के बाद और इस दौर के दरमियान हम लोगों को वो बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतने इख्तिलाफ के बावजूद भी अगर इतने प्यार से 70 साल से हम लोग साथ में रहे हैं, तो मेरे घर में मैं खासा नास्तिक हूँ, लेकिन मेरे घर पे गणपति भगवान आते हैं, तो मेरे कुछ मुसलमान दोस्त भी आते हैं। तो एक दिन एक मेरे शायर दोस्त हैं शकील भाई, वो आए हुए थे, तो आरती हो रही थी, तो लाइन लगती है, सब लोग जाके आरती करते हैं, तो उन्होंने भी ली, उन्होंने भी आरती कर ली। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा यार ये मुसलमान आदमी बुत परस्ती कर रहा है। तो मैंने वो कोने में लेकर पूछा, तो बोले नहीं मैं पूजा थोड़ी कर रहा था भाई, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरी नियत है, मैंने एक भगवान माना है, ये आपके भगवान है, तो मैं आपकी माँ का आदर करता हूँ ना, तो मैं आपके भगवान का भी आदर करता हूँ। Now these things haven't happened, and I think these are the things that we need to do, and we will have a much happier society. Thanks for inviting me. और मैं ऐसा मेरा शक है कि मुझे बहुत सारा खाना खिलाया जाए, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो
अवार्ड सेरेमनी का। तो इसके लिए सबसे पहले सर सैयद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड goes to Mr. Anubhav Sinha for his outstanding contributions to culture and arts. इसके लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट कौसर उस्मानी साहब को ज़्यादा दूंगी कि वो प्लीज मिस्टर अनुभव सिन्हा को इस अवार्ड से नवाजें। अब जो हमारा दूसरा अवार्ड है वो है सर रॉस मसूद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड दिस अवार्ड goes to Dr. Shamim Dawood for her outstanding contributions to leadership and community development services. So please, Dr. Shamim Dawood, you are requested to come here. और ये अवार्ड सर्विस अवार्ड goes to अफरोज रशीद। प्लीज गोली भाई हाँ यहाँ आए और अफरोज रशीद को इस अवार्ड से नवाजें। Thank you very much for the honor. रहती हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उनके बच्चों को मिस्टर अजीज और मिस रफर को यहाँ पे आने की जहमत दूंगी कि प्लीज़ वो यहाँ आए और उनके बिहाफ में ये अवार्ड कलेक्ट करें। बस ये बात नहीं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया मुझे, लेकिन बहरहाल छोटे भाई होने की वजह से जो कुछ करना पड़ा किया मैंने, और बहुत मशहूर हूँ कि आपने मौका दिया, थोड़ा सा उनका शुक्र अदा। जमीन भाई हम लोग इस महफिल में हैं और यकीनन जमीन भाई बहुत मिस हो रहे हैं। शुक्रिया। एक शेर उनके सिलसिले में कह दूँ, आपको सुनिएगा। मांगेंगे अब दुआ किसे भूल जाएं हम, लेकिन जो वक्त दुआ याद आ गया। ये
forget to like, comment and subscribe.